तो मैं ना दीवार के साथ लग के ऐसे करके बैठ गया था, ऐसे। अब मैं ऐसे बैठा हूँ ना, मेरा पैर अगर ऐसे हुआ ना तो ये उसकी ज़ुबान निकाल के, ज़ुबान ऊपर नीचे करके इवन आपकी के अंदर देखते हैं। हाथ खड़े हुए हो तो आप नंगे हो, बाहर से जो भी आपको देखेगा आपको नंगा देखेगा पूरी तरह जी। मैंने कहा यार वो सामने बॉटल पड़ी है खाली, वो मुझे पकड़ा दें। उसने पकड़ा दी, कैप ही लगा हुआ था उस पर। बॉटल मैंने पकड़ी, वॉशरूम की टूटी से पानी भरा, कैप बंद किया। ਕੀ ਹਾਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਉਹ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਡੱਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਬਾਲਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋੜਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਕੀ ਬਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। एनी हाउ आओ देखने वाले हैं। मेरी इस खबर को तमाम लोग नोट कर लें। डक्की भाई की जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। डक्की भाई की जमानत मंजूर। डक्की भाई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। 6 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि वो NCCIA के करप्शन में मुलविस हैं। डक्की भाई से जिन लोगों ने पैसे लिए हैं गैंग की सूरत में, इन तमाम लोगों के इस्तीफे आने वाले हैं। सरफराज चौधरी, मुश्तबा जफर, उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर जवान। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਿਟਗੂ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਆ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਦਾ। ਜੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। अहमद अयाज साहब, इन्होंने अपने इस्तीफे डायरेक्टर लाहौर हशमत कमाल साहब को जाकर सबमिट करवा दिए हैं। डक्की भाई और मुबैना रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार NCCI के 7 एहलकारों ने अब अपने सरकारी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। NCCIA के अफसरान पर करप्शन के इल्जामात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं डक्की भाई, इनके साथ जेल में क्या हुआ, ये किस तरीके से पकड़े गए, जो अफसरान थे उन्होंने इनको कितना मारा, इनके वालिदैन से कितने पैसे लिए, वो रिश्वत की रकम कितनी बड़ी थी। और बहुत से लोग डक्की से जब ये कोर्ट में जाते हैं, सवालात करते हैं, तो डक्की बिल्कुल खामोश रहता है। और शायद लोग समझते हैं कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है या ये बिल्कुल गुमसुम हो गया हुआ है। डक्की भाई, ये किस तरीके से ये सारा मामला हुआ और आपको गिरफ्तार एयरपोर्ट से किया गया था? आप कहीं जा रहे थे या पाकिस्तान लैंड किया था? हम लोगों को मलेशिया से आया हुआ था इनविटेशन एक इवेंट का। मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, कंफर्म रिटर्न टिकट, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पे तो इल्जाम ही लगा था ना कि मैं मुल्क छोड़ के भाग रहा हूँ। किस स्टेट को जाना था आपने? ये मैंने जाना है 16 अगस्त, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उसी टाइम की हमारी फ्लाइट थी ना। और वापसी कब की थी? वापसी थी हमारी 21 या 22 की अगस्त। मतलब आपने 7 दिन बाद वापस आ? मैंने 6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद वापसी थी हमारी।
इस दौरान कोई आपको नोटिस आए? क्योंकि FIA में अगर किसी पर भी FIR होनी है तो पहले 3 नोटिस जाते हैं, तो कोई नोटिस नहीं, नोटिस नहीं आया ना व्हाट्सएप एक नोटिस भी नहीं आया? एक भी नहीं आया। पता है क्या है, मेरी हिस्ट्री है, मुझे कोई नोटिस आया मैं हमेशा पेश हुआ, मैंने कभी किसी इदारे को इग्नोर नहीं किया अगर वो बुलाता है। तो इसका मतलब है कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो फिर तो आपकी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी। FIA तो इस तरीके से गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, या NCCI गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकलिटी समझता नहीं हूँ। ऑल आई नो इज़ कि मुझे नोटिस कोई नहीं मिला। जो इमिग्रेशन पे ऑफिसर था उसने मुझे पूछा कि यार आप पे कोई FIR है। अब जब उसने मेरे से ये पूछा ना, मेरे माइंड में ना एक FIR आना शुरू हो गई जो मेरे पे मोटरवे पे हुई थी। वो जो आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव वाली, वो केयरलेस ड्राइविंग की एक FIR थी, मेरे माइंड में वो आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार एक मोटरवे की FIR है। कहते नहीं कुछ साइबर क्राइम का आपका इशू है। मैंने कहा नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाइए हमारे साथ। इवन उन्होंने मेरी वाइफ को इशारा करके कहा था कि अगर आप जाना चाह रही हैं तो आप जा सकती हैं। वो स्टॉप लिस्ट में नहीं थी। अब क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि यार कोई मोटरवे की FIR थी हुई, ठीक है, तो शायद हो सकता है उसी की कोई इंक्वायरी हो। मैंने वही जो मोटरवे के FIR में जिन लोगों से कंसल्ट किया है, एक आधा मैसेज मैंने उनको कर दिया। साथ मैंने उनसे पूछ लिया कि यार हम लोग फ्लाई कर सकेंगे, अभी हमें किस लिए बैठाया गया है। तो कहती कि नहीं, मेरे ख्याल से आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर मैंने ज़िया को मैसेज कर दिया कि यार वो एक इशू हो गया। हाँ, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि यार हम लोग ना एयरपोर्ट पे ही हैं, हमें फ्लाई नहीं करने दे रहे, तो आप ना आ जाओ वापस। हमें ड्रॉप करके आया था एयरपोर्ट। मैंने कहा यार आप वापस आ जाओ, हमें पिक कर लेना। हमें लगा हम शायद 5-10 मिनट शायद हमें बस फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे, हमें ये लगा। इमिग्रेशन ऑफिसर से मैंने पूछा कि मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा इशू बता सकते हो आपके पास अगर कोई डिटेल है। तो कहता है कि यार आपकी कोई इंक्वायरी है, FIR भी नहीं, ठीक है। कहता है आपकी कोई इंक्वायरी है साइबर क्राइम में लगी हुई, किस बारे में ये हमें नहीं पता। हमसे फ़ोन वगैरह ले लिया, मेरे से और मेरी वाइफ से फ़ोन ले लिया। तो कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा के हमें मोबाइल फ़ोन दे दें। अब हमारा कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया। शुक्र है मैं लोकेशन इसको ज़िया को भेज चुका था। एक मोबाइल जब्त हो गए दोनों के। खैर वो ले गए, मुझे हद करीब बनाई और उन्होंने कहा कि यार मैं आ जाती हूँ साथ तुम्हारे। मैंने कहा नहीं तुम ना घर जाओ। आप पर FIR नहीं हुई थी और आपको अभी FIR नहीं हुई थी, कर लिया गया, हथकड़ी अभी मेरे पे FIR नहीं थी, ठीक है, और हथकड़ी लगा दी गई। हाँ जी, मैंने रूप को कहा तुम जाओ घर, ठीक है, और इन्फॉर्म कर दो लोगों को कि इस तरह से हुआ है। लेकिन इधर तो खबरें ये चलवा दी गई कि डकी जो है हाँ जी, मुल्क से बैरूने मुल्क फरार हो रहा था और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया भागते वक्त। और आप बता रहे हैं कि रिटर्न टिकट्स भी हैं और ये स्क्रीन पर भी लोग देख सकते हैं। अब 16 को जाना था और ये 22 या 3 की रिटर्न टिकट। ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਕੁ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡੀ ਕੁ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਲੋਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ बड़ा तगड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा NCCI ऑफिस, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, एक उनके पास ब्लैंक पेपर था, उन्होंने मेरा बयान लिखना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में पूछा, तब मुझे पता लगा कि ये इस मामले में इंक्वायरी है। जो भी वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे रिगार्डिंग किससे आपकी बातचीत है, अच्छा ये प्रमोशन की कौन सी चैट है, मैंने इनको सारा ऑन द स्पॉट मैंने खोल के दिया। मैंने कहा यार इस बंदे से मेरी बात है, ये मेरी ईमेल है कि तो अपना यूट्यूब चैनल का पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड उन्होंने ले लिया। मैंने कहा ये मेरा ईमेल पासवर्ड है, ठीक है। क्यों ले लिया? अब क्योंकि मैं तो आपको शुरू में बताया ना, मैं कोऑपरेटिव होना चाहता हूँ इदारे के साथ, वरना कहीं वो ये ना सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैंने इवन वो दोनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दे दिए। एक मोबाइल किस पर्पज़ का है, दूसरा मोबाइल किस पर्पज़ का है, तीसरा मोबाइल मेरे पास क्यों है वो भी उनको बताया। मैंने कहा ये आप इसे चला के देखें, ये चलता नहीं है लेकिन इस पर डाटा है, आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको खोल के रिकवर जैसे आपने करना कर लें। मेरा 23 दिन की रिमांड के दौरान जितनी इंक्वायरी हुई है ना, आप कह लो कि ये कोई 1-1.5 घंटे के अंदर मेरी ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इंस्टेड ऑफ 23 डेज। मतलब इतनी जल्दी मैंने चीज़ें सब कुछ दे दी थी। सिर्फ उसका मेन पर्पज़ ये था कि इनके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। अब ये बार बार जब आपको कोर्ट में पेश करते थे, कोशिश की जज साहब आपको 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का रिमांड दे देते थे और रिमांड बढ़ते बढ़ते वो तकरीबन महीने के करीब चला गया। तो ये बार बार रिमांड इसीलिए ले रहे थे क्योंकि बार्गेनिंग करनी थी आपसे। जहाँ तक मैंने फील किया, मुझे किसी ने अपने मुंह से तो नहीं बताया, जो मैंने एक चीज़ फील की है कि अब बातें ना वो ईगो पे आ गई हैं कि देखो हमने पता नहीं कौन सा बंदा तुम दिया, 28 दिन का पूरा उसका रिमांड लिया। वो सरफराज चौधरी साहब थे, वो तो आपके खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, तकरीबन 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मैंने तो ये 3 महीने बाद देखी है।
अच्छा मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, किस चैनल पे बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थी, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। वो तो कहते थे आपको 5 वक्त का नमाजी बना दिया है, अब आप अंदर जो है अल्लाह तौबा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ उसने जो किया है आप अपनी ज़ुबानी बताएं, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि क्या ज़्यादती हुई है आपसे। सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहले दिन रिमांड से वापस आया था। 2 दिन का रिमांड हो चुका था फर्स्ट टाइम। मेरी FIR उस टाइम कटी थी, गिरफ्तारी के पहुंचने के NCCI पहुंचने के बाद तब मेरी FIR कटी थी। उससे नेक्स्ट डे ना आप कह लो कि मैं इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी क्या, कहते है मुंडाई, तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना, हथकड़ी उन्होंने मुझे बना दी। मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते माँ बहन की, गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज़ में बैठ के मेरे वतन अजीज़ के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे वो। जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, फिर उनके कोलो फेल में इसका मतलब ये तुजाद था जो वो इंटरव्यूज़ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗਿਟਕੂ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਦੱਸ ਹੈ दे रहे थे। वो इंटायरली 180 डिग्री पर झूठ बोल रहे थे अवाम के। माँ बहन की गालियाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकता, फॉर वाई, फॉर नो रीज़न, जेन्युइनली नो रीज़न, जस्ट टू शो कि देखो मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ और अब आपको मेरा हुक्म मानना है, समथिंग लाइक दैट। जो आगे होता रहा वो यही था बस। एक पॉइंट पे उसने मुझे चुपेर मारी बहुत जोर की, कुछ पूछता भी था तो मैं नहीं था बोलता, मुझे लगा कि मेरे बोलने की वजह से उससे चुपेर मारी है। मैं मुंह नीचे करके बैठ गया, ठीक है, फिर कहता कि मुंह पर कर, ठीक है, मैं जब मुंह पर किया उसने फिर एक और चुपेर मारी। इवन आपने शायद एक पॉडकास्ट देखा होगा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे एक भी ऑफिसर्स ने इस पे हाथ नहीं उठाया। फिर वो हलफ सही ले रहा ना कि ऑफिसर ने नहीं उठाया, उनके ऑफिसर ने नहीं उठाया, उन्होंने अपनी बात नहीं थी इसमें। ओ मैं भी कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मेरे टीम के किसी बंदे ने इसको नहीं मारा। जब मैंने खुद ही मारा है तो मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। अब वो चुपेरे मारी जा रहा है, मैंने काउंट भी नहीं की उसने कितनी मारी हैं, एस्टिमेटेड मेरे ख्याल से 8-10 पहुंच गई थी। 8-10 चुपेड़े एस्टिमेटेड इतनी थी, और से हाथ भी उसका बहुत मोटा था और बड़ा था, मुंह भी बहुत बड़ा तो उसको शायद पता नहीं, शायद अभी तक मज़ा नहीं आया मार कुटाई करके या गालियाँ दे ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕੀ ਦਾ ਹੈ के भी, शायद अभी उसका वो भरा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने ना एक वीडियो कॉल लगाई, वो एक कॉल बच्चे ने उठाई थी, 6-7 साल का बच्चा था, मुझे नहीं पता कि वो उनके रिश्ते में क्या लगता है, आई डोंट नो। 6-7 साल का वो बच्चा था। उन्होंने पहले पूछा कि डक्की भाई को जानते हो? बच्चा कहता हाँ। तो कहता कि तुम उनके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उस अपने मोबाइल से उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया। अब उस दौरान ना उन्होंने मेरे हाथ ऊपर करवाए हुए थे और टांगे बैंड करवाई हुई थी, ठीक है, और मेरी हल्की सी भी हाथ नीचे होती थी ना, वो फिर एक और चुपेर मारते हैं। और इन्होंने एक बंदा भी मेरे पीछे खड़ा कर दिया था चुपेरे मारने के लिए, वो एक प्राइवेट मुलाजिम था, वो अंदर ही बैठता है। तो अब क्या था कि मेरे हाथ ऊपर है, टांगे बैंड है, उस वीडियो कॉल पे वो बच्चे को दिखा रही है, देखो हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो कहता कि आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? तो कहते नहीं। मुझे यहाँ तक भी मैंने कहा चलो ठीक है, अपना शौक पूरा कर रहा है, कैसे आउट कर रहा है, ये किसने बताया, ये हुआ है वो हुआ है। उसके बाद से मेरे से जो भी पूछने आता था कि आप खामोश, मैं खामोश। इवन इरशाद भट्टी साहब हैं, वो एक बार आए थे पता करने मेरा, तो मैं वहाँ पे कमाल है यार वैसे ना रिपोर्टर आया, बस जो भी वो सवाल कर रहा है उसको उल्टा जवाब दे के बस आ जाना, कोई उसको ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा आया जिसने मुझे हवालात से लेके गया, मुझे हथकड़ी बना के ले गए उधर सरफराज चौधरी साहब के पास। उन्होंने कहा नहीं है। तो आप वो ड्रामा देख के शॉक्ड नहीं हुए कि ये मुझे इतना मारते हैं, अब ये कोई टीवी प्रेजेंटर आ गया तो उसके सामने मुनाफिकत कर रहा है। अब उन्होंने सरफराज साहब के सामने पूछा कि आप पे किसी ने तशद्दुद भी किया है? मैंने कहा नहीं। इरशाद भट्टी साहब ने हाँ, मैंने कहा नहीं। तो कहता कि ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं। मैंने कहा कि सर आपको पता है व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, शायद कोई टॉपिक होगा किसी ने, और सरफराज सामने बैठा, वो देखते रहे, मुझे घूरते रहे। तो कहता देखा ये तो अपना ये वो, अब तो बच्चा ये तो बड़ा अच्छा हो के बाहर निकलेगा, ये तो नमाज़ें पढ़ता है, ये तो ये करता है। वो उनके सामने उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो हम तो बड़ा बेबी सिटिंग कर रहे हैं इसकी ना। बहुत सारे लोग आए हैं पूछने, कोई पता करने आया, कोई वैसे आया, कोई जर्नलिस्ट आया, कोई एंकर आया, कोई न्यूज़ वाला आया, कोई रिपोर्टर आया। मैंने सबको कहा नहीं बड़े अच्छे अफसरान हैं जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। दिल में तो आप ही गंदी गालियाँ देते हैं। दिल में तो ब्रो बद्दुआएं, हम लोग नमाज़ पढ़ के स्पेशल बद्दुआ करवाते थे अंदर हवालात में, 15-14 लोग थे। वो एक बड़ी एक
अजीब सी। आप समेत बाकी लोगों के साथ भी यही रवैया रखा मेरे हुआ था? साथ वो डॉक्टर उमर आदिल भी बंद थे, वो किस चीज़ के आई विटनेस हैं। आते थे अंदर, लोगों की कमीज़ें उठा उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। नीलो नीलो ही नीलो नीलो ही वो होती डॉक्टर है। उमर आदिल साहब ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही भी है। उन्होंने ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर कर दो, आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। उन्होंने ना इवन जब वो अंदर आए, हमने उनसे पूछा कि आप पे क्या पर्चा है ना, तो वो कहते कि मैं पता नहीं, उन्होंने शायद कोई अनाई लोगों के बारे में शायद कुछ बोल कोई दिया बात था। की थी। मेरा ना पेट ख़राब था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने बहुत वाटरी लाइट फूड खाना है, कोई ऑयल कोई नहीं, ठीक है, बाहर का खाना कोई नहीं, बिरयानी श्रियानी। अब मैं घर इन्फॉर्म करता था रिमांड के दौरान कि मुझे ना आप ना बस सुबह शाम ना एक सैंडविच मंगा दिया करें सबवे का, ठीक है, उसमें आपने कोई सॉस नहीं डलवानी है, सिर्फ सैलड हो, चिकन कोशिश करें मसाले वाला ना हो। मैंने ज़िया के ज़िम्मे लगा दिया भाई के कि आपने सबवे मंगा लिया करने सुबह सुबह, फूड पांडा कर दो या किसी के ज़िम्मे लगा दो, ये NCCI ऑफिस गुलबर्ग आपने पहुंचा देना है। एक बार ना सुबह खाना नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं शायद घर वाले उन्होंने शायद माजर कर ली होगी मेरे से कि बस ठीक है, बस ये बैठे अंदर, शायद आप भेज नहीं रहे। दोपहर शाम नहीं आया, मैंने वो वहाँ पे एक गार्ड था, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप मुझे ज़रा कॉल करवा सकते हो एक, तो मैंने उसको कॉल की ज़िया को, भाई को, मैंने कहा यार आप सब पे सैंडविच भिजवा दो, मैं सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ। तो कहता है यार आप कैसी बातें कर रहे हो, 2 सुबह मैंने भिजवाए हैं, 2 शाम को भिजवाए हैं। फिर ये बात जब मैंने आउट की डिपार्टमेंट में, तब जाके मेरा खाना मेरे तक पहुंचना शुरू हुआ कि खाना कौन खा ये रहा मेरा था? खाना ऊपर सबवे खा जाते थे। सरफराज, मुझे नहीं पता सरफराज खाता था या कौन खाता था, लेकिन मेरे तक नहीं था पहुंचता। तो हवालात में क्या ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਈ, सब दिखा हुआ। कितने लोग होते थे, वॉशरूम कैसा मेरे होते हुए, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है NCCI का, मैं हाईएस्ट रिमांडेड बंदा हूँ, 23 डेज़ मेरा हुआ है, और इससे पहले किसी भी बंदे का NCCI के अंदर 23 डेज़ का रिमांड नहीं हुआ। आज भी अगर आज उधर NCCI उधर जाएंगे हवालात में, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है डक्की भाई वॉज हियर फॉर 23 डेज़ रिमांड, मैंने एज इट इज़ वो दीवार पर लिख के आया हूँ। हर बंदा इतने जोगे नहीं होता कि घर वाले उसके खाना दे के आए, ये वो। कितना बड़ा हवालात था? ब्रो एक बेडरूम से भी छोटा, बेडरूम जितना था, और अंदर मेरे होते हुए एक बार 27 बंदे रह के गए हैं, 27 बंदों एक तो वो कैसे एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े होंगे? यार एक दूसरे के ऊपर ही थे, क्योंकि रात मुझे नींद नहीं थी आती, तो मैं ना दीवार के साथ लग के ऐसे करके बैठ गया था, ऐसे। अब मैं ऐसे बैठा हूँ ना, मेरा पैर अगर ऐसे हुआ ना तो ये उसके सर पे लग जाएगा बंदे के, ठीक है, मेरा अगर हाथ ऐसे हुआ तो वो किसी बंदे के पैर पे लग जाएगा, यानी कि मैं ऐसे इसलिए बैठा हूँ ताकि बाकी 27 बंदे को 1 इंच की जगह मिल जाए एक्स्ट्रा। और ये पूरी रात यूं ही चलना है सिस्टम, यूं ही बैठना है? हाँ, इवन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि बाड़ियाँ लगा ली थी हमने। और गर्मी कितनी थी? यार अल्लाह का शुक्र है उस टाइम बारिशें चल रही थी, लेकिन उस सावन भादो का महीना हाँ, था। लेकिन वो हमें चीज़ ज़्यादा वर्स लगती है क्योंकि चूहे आ जाते थे अंदर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नमी और ये इस तरह की, और ये गंद ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा आपको डर्टी फील होता है, हीट नहीं पड़ती, आपको सूरज नहीं पड़ता। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਈ कि बिस्तरों पे, आपके चादरों पे और ये वो, तो वो ज़्यादा आपको अनहाइजीनिक लगता है। तो कुछ लोग जूते लेके अंदर आते थे, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। 27 बंदे, अब उनको किन किन को हम कहेंगे कि यार ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। खाना भी अगर खा रहे हैं तो वो कौन सी एक दस्तरखान बिछता है तो वहाँ पे प्रॉपर गिलास आते हैं, 1 अद्धा 2 गिलास होंगे, वो 27 बंदों ने शेयर करना है, प्लेट है वहाँ पे। वॉशरूम कैसे कर रहे हैं? वॉशरूम बस बारी बारी, और वहीं पे है वॉशरूम? अंदर ही उन्होंने बना हुआ है, मतलब उसके दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, लेकिन उस पर कपड़ा लटकाया हुआ है, वो भी किसी मुल्ज़मान ने वही लटका के गया। मतलब एक बंदा वॉशरूम कर रहा है और 26 जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पर्दा नहीं, पर्दा लगाया हुआ है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो वहीं, क्योंकि पहले कोई रह के गया तो होगा। उसकी स्मेल भी वॉशरूम की वहीं पर है और वहीं पर आप रह रहे हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में। हाँ जी, तो और 23 दिन आप रहे हैं? 23 दिन? मैं 23 डेज रहा हूँ। जेल में पहली रात कैसी गुजरी, पहला दिन जब इतने क्रिमिनल लोगों को देख रहे हैं, कोई मंशियात फरोश है, किसी ने 4 कत्ल किए हुए हैं, इधर एक मम्मी डैडी बच्चा है वो एंटर हुआ है पहली दफ़ा, तो वो क्या मामला था सारा बताएंगे? कितना जेल का जो भयानक? सबसे मुश्किल पार्ट है ना,
वो एंट्री का है, क्योंकि जब वो आपकी चेकिंग करते हैं घंटा लगा के, आपके बाल देखते हैं, कि कान के अंदर देखते हैं, आपकी नाक के अंदर देखते हैं, आपके मुंह के अंदर ऐसे आपके लिप्स ऊपर करके ज़ुबान निकाल के ज़ुबान ऊपर नीचे करके इवन आपकी के अंदर देखते हैं, हाथ फील करके ना पैंट के अंदर अंदर बार बार से ही जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में सुराख है ना वो देखते हैं, ताकि कोई जेल में कोई ऐसी इलीगल चीज़ ना ले आए। ठीक है, तो मतलब वो हर टाइप का, देखो हर टाइप का बंदा, जहाँ ये तो मैंने पता जहाँ है, जहाँ already हाथ पता जाता है। है, हर टाइप का बंदा आता है ना। एनीवे वो चेकिंग होती है, उसके बाद फिर आपकी एक गिनती डिसाइड होती है। गिनती जेल की ही एक ज़ुबान है, गिनती खुल गई, गिनती बंद होगी। अब वहाँ पे क्योंकि जब मैं एंटर हुआ तो बहुत सारे इंचार्ज फ़ोटो भी लेनी उन्होंने शुरू कर दी थी, तो बल्कि शायद एक मुझे जेल में ये मुझे किसी ने बताया कि आपकी जेल में एंट्री की वीडियो किसी ने डाली है। अब वो जब ये इस तरह की जब एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, तो वो शायद ऑफिसर्स देख लेते हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है या क्या है, तो वो उस हिसाब से उसकी समटाइम्स गिनती हो जाती है। अब क्या होता है कि जो मंशियात वाले लोग हैं उनकी एक अलहदा बैरक बनी हुई है। बैरक आप ऐसा समझो वो भी जेल की ही ज़ुबान है, हॉल कह लो आप, इस दीवार से लेके इस दीवार तक एक बैरक होता है। वहाँ पे छोटी छोटी चक्की बनी होती है, चक्की बेसिकली सेल को कहते हैं, ये भी जेल की ज़ुबान है, ठीक है। सेल को उर्दू में चक्की कहते हैं। मेरी किस बैरक में गिनती होनी है ये डिसाइड हो रहा, तो वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि यार बड़े लोग इसको जानते हैं, ऐसे ही कोई नुकसान ना कर दे, तो इसको हिफाजती बंद करें। और हिफाजती बंद एक अलहदा सज़ा है ब्रो। वो आप अकेले आइसोलेटेड किसी से मिल नहीं सकते, मैं वहाँ पे बाहर तरला करता है, मुझे खोल दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे वॉक करने दो। हिफाजती बंद एक अलहदा सज़ा है। मतलब आपका फेम ही आपको वहाँ पर भी लेट काम ख़राब कर गया। जो इंचार्ज थे वो तो आके ही कहते हैं कि नहीं आपको बहुत अच्छी वार्ड मिले। मैंने कहा यार मैंने नहीं चाहिए, मैंने बाहर कर। जो सेल होता है ना, आप कह लो कि कुछ 6 बड़ी टाइल्स नहीं है, उस साइज़ का सेल होता है एक। वॉशरूम उधर कवर्ड नहीं होता है, वॉशरूम के आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो आप नंगे हो, बाहर से जो भी आपको देखेगा आपको नंगा देखेगा पूरी तरह। अगर आप बैठे हुए हो वॉशरूम करने के लिए बैठे हो, वो नीचे वाला वॉशरूम लगा होता है। अगर आप बैठे हुए हो तो फिर आप चेस्ट से ऊपर नंगे हो, नीचे कवर्ड हो, इतनी दीवार होती है बस उसके आगे। एक इंचार्ज गुजरा, 15-20 मिनट के बाद गुजरा, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा सर बात सुनना। तो कहता हाँ जी। मैंने कहा यार वो सामने बॉटल पड़ी है खाली, वो मुझे पकड़ा दें। उसने पकड़ा दी, कैप ही लगा हुआ था उस पर। बॉटल मैंने पकड़ी, वॉशरूम की टूटी से पानी भरा, कैप बंद किया। शदीद गर्मी थी। अब ये वक्त आ गया, बारिशें भी ख़त्म हो गई हैं, कूलर के बगैर आप नहीं रह सकते। शुक्र है मान टाइम बारिशें थी तो थोड़ा बंदे का गुजारा हो जाता था। ये बारिशें ख़त्म हो गई हैं, शदीद पसीना, मतलब दिल ही नहीं करता। पंखा तो था लेकिन उसकी हाइट बहुत ऊंची थी, वो उन्होंने इसलिए की हुई थी ताकि कोई सुसाइड ना कर ले। मैंने अपनी कमीज़ उतारी, कमीज़ उतार के ना मैंने अंदर बॉटल डाली, उसको लपेटा, सर के नीचे रख के सो गया। मैं 2 दिन ऐसे ही सोया। हाँ, आप घर से मंगा सकते हो चादरें, लेकिन मेरे घर वाले आए थे कुछ थर्ड डे 2 दिन आपने ऐसे गुजारे, ठीक। तीसरे दिन मेरे घर वाले आए, तो घर वालों के साथ भी मुलाकात ना इस तरह से होती है, हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है जेल के अंदर। ये SOP है। मूवीज़ में नहीं आपने देखा, दरमियान में शीशा लगा होता है, एक तरफ एक बंदा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा बंदा बैठा होता है, और आपके आगे एक लैंडलाइन होता है और आप लैंडलाइन के थ्रू बात करते हो। शायद आपने किसी मूवी में देखा हो। तो ये सारा दिन कैसा गुजरता था वहाँ, और रात कैसे गुजरती थी? रात बहुत मुश्किल थी, और मेरे लिए सबसे मुश्किल रात गुजारनी इसलिए थी क्योंकि मैं पिछले 10 साल से अंधेरे में नहीं सोया। मैं इस तरह का बंदा ही नहीं, मैं नाइट आउल हूँ बेसिकली। मुझे तकरीबन अंधेरे वाली रूटीन करते करते मुझे ना 6 हफ्ते लग गए। रात को मैं वक्त गुजार लेता था अखबार पढ़ के, ज़िंदगी मैंने अखबार नहीं पढ़ा। तो आपसे रिलेटेड खबरें भी कभी मिलती थी? आती ही। तो कौन सी पढ़ी और जिसमें आपको लगा होगा यार है कि ये सबसे ज़्यादा एक खबर थी जिसको पढ़ के मैं ज़िंदगी में उतना टेंशन में नहीं गया। मैं इवन गिरफ्तारी के दौरान इतना टेंशन में नहीं गया जो मैं वो खबर देख के टेंशन में चला गया। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस फ़रूक हैदर साहब, उन्होंने जब उनके पास जब मेरी बेल लगी तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका केस सुनना ही नहीं है। माजरत कर ली थी। आपने जुआ खेला था? कितना जुआ खेला? ये सरफराज साहब मैंने ज़िंदगी में बहुत जुआ खेला है, और एक ना आपको $10,000 या $20,000 एक शाउट आउट का लेते थे। नहीं, इवन उस बंदे को शाउट आउट का भी नहीं पता। वो एक एंकर ने पूछा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स शाउट आउट होते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं, तो वो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं चाहता हूँ ये पूरा पाकिस्तान भी सुन ले। वो जुआरियों से पैसा ले रहा था,
शाउट आउट देने का, प्रमोट करने का वो $10,000 से लेकर $20,000 तक पर प्रोग्राम। शाउट आउट को थोड़ा एक्सप्लेन करें। जब आप गाली देते हैं, किसी की मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं, आप ये करते हैं, तो उसके लिए हमारे दफात हैं। तो यार वो कह रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर्स क्या बात है। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ। ਪਈ ਹੈ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਲਈ, ਸੰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਕੋਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਫੇਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਂਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਰਗਰ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ 23 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਕੱਲੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਨਾ YouTube ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਈਗੋ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਂਸੂ ਆਉਣਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਂਸੂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੈਨ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।